Hello, dear student. In yesterday's class, we have discussed the derivative of a function which we can evaluate with the help of logarithm. By using logarithm, we already find the differentiation of few function. In today's class, we will discuss the derivative of parametric function. Parametric to tomorrow already paisa. Parametric means what? Function suppose f of t a हो गया x y is also g of t. ये फंक्शन क्या है? वेरिएबल एक आ गया t. फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ t. नॉट मे बी द t ऑलवेज. t বুলি নহয়, এইটো বেলেগ থাকিব আৰু থাৰ্ড ভেৰিয়েবল. দেয়াৰ উইল বি আ থাৰ্ড ভেৰিয়েবল in that function. This variable is called as parameter. Parameter. Variable t. Here t is our parameter. So, and the function containing this parameter is called the parametric function. Now we'll find the derivative of this parametric function. Okay, let's check with the help of example. One more thing, আৰু এটা কথা ইয়াতে লগত আমি যেতিয়া parametric functionৰ derivatives ওলাও, then we need to follow the chain rule. আমি chain rule apply কৰিব লাগিব. The chain rule to find the derivatives of a parametric function. এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰোঁ, দেন ইট উইল বি ক্লিয়াৰ টু ইউ. কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলে তেতিয়া ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব. ফাইণ্ড dy by dx if x equal to a cos theta, y equal to a sin theta. This equation is parametric equation, or this function is parametric function, x and y function. तो parametric function होबो x and y to y because it is the function of trigonometric function दिया हुआ है दोनों में. थीटा यहाँ पर थीटा है, थीटा इज वेरिएबल इन बोथ द केसेस. सो थर्ड जो पैरामीटर होगा यहाँ पर क्या होगा? एक्स एंड वाई के सिवा, दैट इज थीटा. सो व्हाट वी नीड टू डू टू फाइंड dy by dx. चेक द सॉल्यूशन केयरफुली. पहला हमें x है, यहाँ पर हम dx by d थीटा निकालेंगे. we'll find the derivative of this x with respect to theta, that is dx by d theta. That means what we need to do? d theta of a cos theta. इसका हम क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. सो a तो कांस्टेंट है, a तो बाहर रह जाओ. d थीटा cos थीटा. cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस sin थीटा. सो a हो गया माइनस a sin थीटा. That we got dx by d theta is minus a sin theta. Similarly, we'll find dy by d theta. कैसे निकालेंगे? y equal to a sin theta. That is here also d theta of a sin theta. इसका डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा? a तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है. आई एम राइटिंग a and d theta of sin theta. साइन थीटा का डेरिवेटिव्स क्या होता है? cos थीटा. दैट वी गॉट a cos थीटा. अच्छे से देखो, अभी हमें क्या चाहिए? dy by dx, बट वी गॉट हियर dx by d थीटा एंड dy by d थीटा. सो वी विल अप्लाई चेन रूल हियर. dy by dx कैन बी रिटन एज dy by dx है.
इसको हम लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा इंटू, तो क्या करना पड़ेगा डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया हुआ, याते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स কৰিছোঁ, বাট ইয়াতে dy বাই ডি থিটা, और ইউ কেন চেক ডি থিটা কেনসেল হৈ যাব, চ' আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, বাট উই ডোন্ট নো ডি থিটা বাই ডি এক্স, চ' you can write dy by d theta divided by dx by d theta. I think সবে বুজি পাইছা, এটো লিখিব পাৰো ধুনিয়াকে dy by d theta by dx by d theta. Now দুইটা ভ্যালু আমি জানো, dy by d theta is our a cos theta, a cos theta, and dx by d theta is minus a sin theta. That a will be get cancel, cos theta by sin theta, that will be cot theta, minus तो रहेगा ही cot theta. This is our final result. I think everyone get it. Let's discuss another numerical from your NCERT textbook. Question: x equal to 2at square, 2at square, comma y equal to at to the power 4. Find dy by dx. Find dy by dx. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x दिया हुआ है 2at square and y is given as at to the power 4. We need to find dy by dx. What should we do? How we can find dy by dx? It is of the parametric form, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल है t, इसको पैरामीटर बोलते हैं. Okay, let's find dy by dx. To find dy by dx, first you need to find dx by dt. Differentiation of x with respect to t, that is d dt of 2at square. पहले तो ये 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2a, d dt of t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2t, सो ये आता है 4at. वी गॉट dx by dt as 4at. नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड dy by dt. इसका क्या हो जाएगा d dt of at to the power 4. इसका a तो बाहर आ जाएगा, ऐसे ही कांस्टेंट है, इनटू t to the power 4 का होता है 4t क्यूब, दैट इज 4at क्यूब. ये होगा dy by dt. Already in previous numerical we find dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. ये तो हमने दिखाया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में. सो पुट द वैल्यू ऑफ dy by dt, 4at to the power 3 divided by 4at. यहाँ पर 4a कैंसिल हो जाएगा, t and t क्यूब t स्क्वायर रह जाएगा, दैट इज t स्क्वायर. इट इज आवर फाइनल रिजल्ट. I hope everyone get it. Let's do one more numerical from the parametric form. Find dy by dx if x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3. ये क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx if x to the power 2 by 3 equal to y to the power 2 by 3, that is equal to a power 2 by 3. यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो a x to the power 2 by 3 y to the power 2 by 3 है,
एंड a पावर 2/3। तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। इससे आसान तरीका क्या कर सकते हैं, हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। Therefore अब इस इक्वेशन पे पुट कर दो, x का वैल्यू आ गया a cos क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3 प्लस यहाँ पर a आ गया sin क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। पहले इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, a पावर 2/3, a 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पुट कर दिया, दिस इक्वल टू a टू द पावर 2/3। यहाँ पर देखो a पावर 2/3 दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है, 1 होता है, दैट इज a पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। तो दोनों साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स इट इज द x इक्वल टू cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इसका a वाला हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। लिखने का जरूरत नहीं है, बुक पे लिखा हुआ है ऐसे भी, दिस आर द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस टू। नाउ यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसको क्या करना पड़ेगा, dx/d थीटा निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली कैन डू, a इज कॉन्स्टेंट, a आ गया इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, cos का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, आगे माइनस आ जाएगा, dx/d थीटा हो गया। सिमिलरली dy/d थीटा विल बी, इट इज d थीटा। ओके, इक्वल टू, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, साइन क्यूब है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। चेन रूल ही अप्लाई किया है मैंने। Therefore dy/dx, ये dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा होगा, दैट इज इक्वल, हमें dy/d थीटा ये वाला मिल गया, ट्वाइस a, इसको एक बार लिख सकते हो, ट्वाइस a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ओके, ट्वाइस a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा एंड माइनस ट्वाइस a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यहाँ पर तो cos a वाला कैंसिल हो गया, साइन इसके साथ कैंसिल हो गए, रहेगा क्या, साइन बाई cos और नेगेटिव 2a कैंसिल हो गए, माइनस ऑफ साइन बाई cos इज tan थीटा। इट्स आवर फाइनल रिजल्ट, माइनस ऑफ tan थीटा। बट यू नीड टू रिप्लेस थीटा, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ x एंड y। tan थीटा आ गया, इसको that can be replaced by
माइनस क्यूबिक रूट ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ देख सकते हो वाई बाई एक्स करो, क्यूबिक रूट, ए तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स निकाल के भी दे देता हूँ तुम लोगों को, वाई बाई एक्स कैलकुलेशन के लिए। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब बाई cos cube theta, this that is tan cube theta. You can write, so in place of tan theta क्या आ जाएगा, tan theta के जगह y by x होल टू द पावर 1/3 वही लिखा हुआ है, माइनस तो था ही पहले, सो यू कैन राइट माइनस क्यूबिक रूट ऑफ y by x, क्योंकि थीटा हमारा इक्वेशन में था नहीं, दैट्स वाई लास्ट में वो मतलब सब्सटीट्यूट कर देना है जो हमने लिया था। आई थिंक यू गॉट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में बहुत आता है बोर्ड में। पैरामेट्रिक का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, लिख लो। तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड में एक इक्वेशन तो पैरामेट्रिक फॉर्म का आता ही है, नॉट ओनली द बोर्ड, एंट्रेंस में भी आता है पैरामेट्रिक फॉर्म का, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, देयर इज अ फ्यू मोर न्यूमेरिकल फॉर यू गाइस टू डू, दैट इज योर होमवर्क। चेक द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx where x equal to sin t, y equal to cos 2t. And second question, find dy by dx where x is given as cos theta minus cos 2 theta, y equal to sin theta minus sin 2 theta. And third one, if x equal to square root of a power sin inverse t, square root of a power cos inverse t, then show that dy by dx equal to minus y by x. These are the three questions you need to submit by tomorrow. कल ही सबमिट कर देना। तुम लोग तो होमवर्क सबमिट नहीं करते हो, जो होमवर्क नहीं हो पाता है वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं, वो तो पहले ही बता चुका। तो लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था, none of you did submit the homework. You are taking it very casually, बहुत casually লৈ আছা দে। আগতে বাৰে বাৰে কৈছোঁ কথাটো, বি চিৰিয়াছ গাইজ। তোমালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ, ক্লাছৰুমত আহিছোঁ, আহি ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাতে তোমালোকৰ ক্লাছৰুম ফিলিংছটো দিব পাৰোঁ। Although you are not watching the videos, although you are not submitting the homework, what is the reason behind it? I don't know. Hope you do submit this homework, and if you have any doubts, contact me. Okay, thank you.